Hello dear students, in this video we are going to study fluorescence, phosphorescence, chemiluminescence and photosensitization. Okay, so we will move with the first topic, that is the fluorescence. So what is fluorescence? This process is instant process, okay, instantaneously occurs. So when it occurs, when a beam of radiation is incident on certain substances, okay, that substances emit visible radiation instantly, okay. So that radiation is the fluorescence, and this process is known as the fluorescence, okay. So what is how this happen? You have studied that Jablonski diagram. In that diagram we have seen that when the radiative transitions takes place from first singlet state, that is from S1 to the ground state, that is S0, okay. So this is radiative transition. This transition occurs near about in 10 raised to minus 8 seconds, okay, near about 10 raised to minus 8 seconds. So this transition is a radiative transition, and this is known as the fluorescence, okay. This is a spectroscopically allowed process, and this phenomena is takes place immediately after the absorption of light, means within 10 raised to minus 8 seconds you can see the effect of fluorescence, okay. And the wavelength of that emitted light is totally depending on the substance, okay, nature of the substance, what type of substance it is. And extent of fluorescence depends upon which type of solvent we are using and which type of anions are present in that solution. So this can be seen in liquid as well as solid. As soon as the incident radiation is cut off, fluorescence is stopped. Means if we put the reaction mixture or that substance in completely dark area, then we cannot see any kind of fluorescence, okay. So this is totally depending on the incident radiation, okay. You can see this kind of fluorescence in a solution of chlorophyll, which shows a red color of fluorescence, okay. Again with the blue light, fluorescence can be seen with teeth, hair, skin, etc. Fluorescence shows intense green fluorescence in dilute alkali solution. So how this happens, we will see. So suppose we have to take the example of phthalic acid, okay, or succinic acid, formula of phthalic acid. So this is the phthalic acid, COOH, okay, and this is COOH. तो ये थैलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन करते हैं, मतलब इसके साथ ऐड करते हैं। जैसे हमने एक टेस्ट ट्यूब में ये थैलिक एसिड ले लिया, ठीक है, थैलिक एसिड ले लिया, उसमें ऐड करेंगे रेजोर्सिनॉल और जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। इस मिक्सचर को क्या क्या है, इसमें थैलिक एसिड है, ठीक है, और रेजोर्सिनॉल है और जिंक क्लोराइड है, ठीक है। तो इन सबको, इस रिएक्शन मिक्सचर को करेंगे हीट, ठीक है, जब तक वो मेल्ट नहीं होते तब तक। जब वो मेल्ट हो जाएगा तो उसके कुछ ड्रॉप्स हम ऐड करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें हम लेंगे NaOH का सोल्यूशन ले सकते हैं हम, ठीक है। NaOH का सोल्यूशन ले लिया हमने, अल्कलाइन सोल्यूशन इसको बोलेंगे। उसमें अगर 1-2 ड्रॉप्स ये जो मिक्सचर हमने बनाया इसका ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपको इंटेंस ग्रीन फ्लोरोसेंस दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर कलर। जैसे ये कलर है ना, अभी ये इंक का कलर दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन, बस उसी ग्रीन कलर का आपको फ्लोरोसेंस दिखाई देता है। तो ये है फ्लोरोसेंस के कुछ एग्जांपल। एप्लीकेशंस उसके ये है कि अगर कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट्स है, मतलब रियल डॉक्यूमेंट के जैसे ही डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट अगर कोई बनाता है, तो उनमें डिफरेंस करने के लिए ये फ्लोरोसेंस प्रोसेस यूज़ होती है। इंक जो होती है, वो इंक पर अगर यूवी लाइट पास करो
तो उसके फ्लोरोसेंस पर से पता चलता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है। ओके, रिंग वॉर्म के डिटेक्शन में भी यूज़ होता है। आप जानते हैं ये डिसीज़ होती है रिंग वॉर्म की वजह से। और फ्लोरोसेंस ऑफ फॉस्फोरस, ये फास्फोरस के लैम्प्स में भी आपने पढ़ा होगा, ये यूज़ होता है प्रोसेस करके। और साथ ही में अगर को कहाँ कहीं पर इनविजिबल रेडिएशन है, जैसे यूवी रेज होते हैं वो दिखाई नहीं देते, तो ऐसे इनविजिबल रेडिएशंस के डिटेक्शन के लिए फ्लोरोसेंस इस प्रोसेस का यूज़ होता है। सेकंड है फॉस्फोरेसेंस। तो फॉस्फोरेसेंस भी हमने जैवलेंस की डायग्राम में देखा था कि फॉस्फोरेसेंस तब होता है, ये भी रेडिएटिव ट्रांजिशन है। तो फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट दैट इज़ फ्रॉम T1 टू S0, ये जब रेडिएशन ट्रांजिशन होता है तो उस वक्त जो रेडिएशंस होते हैं और इसके लिए जो टाइम पीरियड लगता है वो है नियर अबाउट 10⁻³ सेकंड्स का। ठीक है, तो इस ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू फ्लोरोसेंस 10⁻³ सेकंड्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसी होती है, थोड़ी सी इसे डिलेड फ्लोरोसेंस भी कहते हैं। क्यों डिलेड फ्लोरोसेंस कहते हैं इसको, क्योंकि क्या होता है, पहले तो जैसे ये ग्राउंड लेवल है S0, यहाँ से फिर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा सिंगलेट स्टेट में। सपोज वो फर्स्ट स्टेट में गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट है S0। यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हुआ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, फिर वहाँ से वो हीट रिलीज़ करके यहाँ पर आएगा फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट में, और फिर यहाँ से वो आएगा यहाँ पर S0 स्टेट में। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होने में टाइम लगता है, इसलिए इसको डिलेड फ्लोरोसेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर देखा जाए तो ये है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन सब्सटेंसेस दे इमिट लाइट कंटिन्यूसली इवन आफ्टर द इंसिडेंट लाइट इज़ कट ऑफ। मतलब अगर आप ये कंप्लीट डार्क जगह पर भी इसको आप देख पाते हो। ठीक है, तो आपने वो देखा होगा कई वॉचेस में ये लगे हुए होते हैं, जहाँ पर डायल पर वो जो नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4, उनके नीचे छोटे छोटे डॉट होते हैं। ठीक है, और जो उस वॉच के जो हैंड्स होते हैं उन पर भी छोटे डॉट्स लगे हुए होते हैं। तो अगर अंधेरे में आप जाते हैं, ठीक है, पहले तो उस पर रेडिएशन होगा, फिर अगर आप अंधेरे में देखते हैं तो वो आपको दिखाई देती है कि कितना टाइम हुआ है। तो ये सिंपल सा फिनोमिना फॉस्फोरेसेंस का उस में यूज़ किया जाता है। तो ये यहाँ पर जो फिनोमिना होती है ये अल्ट्रा वायलेट और वायलेट रेडिएशंस की वजह से होती है। मेनली सॉलिड कंपाउंड्स ये प्रोसेस शो करते हैं। ठीक है, और जैसे कोई सब्सटेंस है तो उसका मैग्नेटिक और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो है फास्फोरेसेंस के पहले और फास्फोरेसेंस के बाद वो डिफरेंट होती है। ठीक है, और ये क्यों होता है, क्योंकि स्पिन चेंज होते हैं। जैसे सिंगलेट स्टेट में है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है, तो वो यहाँ पर सिंगलेट स्टेट में ही पहुँचा, लेकिन जब वो यहाँ पर आ रहा है मतलब T1 स्टेट में, तो उसकी स्पिन चेंज हो रही है। ठीक है, तो स्पिन चेंज होने की वजह से उसकी मैग्नेटिक और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा कि ये डार्क में भी आपको दिखाई देता है, मतलब अगर इंसिडेंट रेडिएशन आपने बंद कर दिया, कंप्लीट डार्क कर दिया वहाँ पर, फिर भी ये आपको दिखाई देगा। ओके, फ्लोरोसेंस सडनली आप कट ऑफ रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन कट ऑफ करने के बाद में नहीं दिखता है, लेकिन फॉस्फोरेसेंस आपको दिखता है। तो कुछ सब्सटेंसेस है जैसे सल्फाइड्स ऑफ जिंक, अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये फिनोमेना शो करते हैं। कुछ अभी जो मैंने प्रोसेस बताया आपको, थैलिक एसिड रिएक्शन बताई, थैलिक एसिड और रेजोर्सिनॉल और अल्कली सॉल्यूशन में उसको ऐड करना, उस तरीके से कुछ डाइज बनाए जाते हैं जो कपड़ों को रंगने के लिए काम आते हैं। ठीक है, और जो हम कुछ जेम्स देखते हैं जैसे रूबी, इमराल्ड, ये यहाँ पर जो वो लाइट रेज इमिट करते हैं वो दैट इज़ ड्यू टू द फॉस्फोरेसेंस।
तो यहाँ पर ये हुआ फॉस्फोरेसेंस। तो इसके यूजेस आप देख रहे हैं पेंटिंग में, वॉच डायल्स में, इलेक्ट्रिक स्विचेस में, मतलब जहाँ पर अंधेरा हो जाता है, ठीक है, पहले इंसिडेंट रेडिएशन हो जाएगी फिर अंधेरा हो जाता है, तो ऐसे जगह पर कुछ क्लूज मिलने के लिए, कुछ दिखने के लिए ये फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस का यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक स्विचेज है, अंधेरे में आप चले जाएंगे तो दिखाई नहीं देगा, तो वहाँ पर लगाए जाते कुछ ऐसे मटेरियल जो आपको दिखाई दे वो रेडिएशन करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है केमिल्यूमिनेसेंस। तो कुछ ये जो केमिल्यूमिनेसेंस प्रोसेस है, इस प्रोसेस में सेकंड, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें जब प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो वो प्रोडक्ट ही एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। तो वो प्रोडक्ट जब ग्राउंड स्टेट में आने लगते हैं तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज़ करते हैं, वो भी विजिबल फॉर्म में, ठीक है, विजिबल रेडिएशंस फॉर्म में, तो हम उन्हें देख पाते हैं। तो ये जो रेडिएशन है, इमिशन ऑफ विजिबल लाइट केमिकल रिएक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड द केमिल्यूमिनेसेंस। वेरी फेमस एग्जांपल है सोडियम वेपर लैंप्स, आपने देखे होंगे। वो सोडियम वेपर लैंप में जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। आप जानते हैं कि सोडियम मेटल जो है वो मोनो एटॉमिक और डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में आता है। तो सबसे पहले तो जो क्लोरीन गैस है उसके साथ में मोनो एटॉमिक सोडियम रिएक्ट होगा, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे NaCl, और ये Cl का एटम रिलीज होगा। तो ये Cl और Na, ये सोडियम मोनो एटॉमिक, ये रिएक्ट होंगे, NaCl बनेगा। अब ये जो Cl यहाँ पर है, ये Cl रिएक्ट होगा Na2 से, ठीक है। तो ये Na2 से, मतलब ये डायटोमिक सोडियम है, ये डायटोमिक सोडियम के साथ अगर रिएक्ट होता है तो क्या मिलेगा, यहाँ पर NaCl बनेगा, ठीक है, और ये सोडियम एटम बनेगा। ये जो NaCl है वो एक्साइटेड स्टेट में है। इस रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट बना है NaCl, वो इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट में है। ये प्रोडक्ट रिएक्ट करेगा सोडियम मोनो एटॉमिक के साथ में, ठीक है, मोनो एटॉमिक के साथ में, तो क्या बनेगा, ये ग्राउंड स्टेट का NaCl बनेगा, और सोडियम एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में वहाँ पे फॉर्म होगा। तो ये जो है सोडियम एटम एक्साइटेड स्टेट वाला, वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ येलो लाइट, ठीक है, और सोडियम एटम वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो इसी वजह से हम वो येलो कलर के सोडियम वेपर लैंप्स जो है वो उससे लाइट हमको मिलती है। वैसे मर्क्यूरी वेपर लैंप्स भी होते हैं, जो बहुत सारी जगह पे स्ट्रीट लाइट्स पे आपने ये प्रोसेस देखी होगी, ठीक है, बहुत सुंदर दिखते हैं येलो कलर के। नेक्स्ट है फोटोसेंसिटाइजेशन एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस। ओके, तो इस फोटोसेंसिटाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, इसका नाम ये एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस, मतलब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के पास एनर्जी ट्रांसफ़र की जाएगी। तो कैसे होगा, जैसे कुछ सब्सटेंसेस हैं वो अगर उन पर रेडिएशन हम डालें, लाइट रेडिएशंस, तो वो रिएक्ट नहीं होते, ठीक है, लेकिन अगर उनमें कोई और थर्ड सब्सटेंस डाल दिया जाए जो कि रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और वो अपनी एनर्जी उन सब्सटेंस को दे दे जो पहले खुद होकर लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट नहीं हो रहे थे, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा और फिर प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो ऐसा ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर, और वो जो सब्सटेंस हम डालते हैं जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, उससे बोलते हैं फोटोसेंसिटाइज़र, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन, ठीक है। तो सिंपल ये प्रोसेस एनर्जी कैरी करेगा वो और दूसरे को ट्रांसफ़र करेगा, ये फोटोसेंसिटाइज़र का काम है, ठीक। कुछ कॉमन एग्जांपल देखते हैं। आप जानते हैं कि जो पेड़ है, जो पत्ते हैं, ठीक है, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, यूज़ करते हैं, और साथ ही में जो पत्तों में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो है यहाँ पर फोटोसेंसिटाइज़र। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स ये एयर में होते हैं, लाइट भी होती है, ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एयर में ग्लूकोज तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके उस तरीके से रिएक्ट नहीं होते। लेकिन ये लीव्स में ये प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि लीव्स में होता है क्लोरोफिल, ग्रीन लीव्स में, ठीक है, होता है क्लोरोफिल। तो ये पिगमेंट क्या करता है, वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है,
ठीक है, खुद एक्साइट होता है, फिर एक्साइटेड होने के बाद में अपनी एनर्जी जो है वो इनको, ये जो रिएक्टेंट्स है इनको पास आउट करता है। ये वाटर मॉलिक्यूल, वाटर जो है वो रूट से भी आएंगे और कुछ वाटर वेपर्स एयर से भी वो एब्जॉर्ब करेंगे लीव्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर से मिल जाएंगे और वाटर उनको रूट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये इन रिएक्टेंट्स को ये क्लोरोफिल जो है एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, फिर इनको करेगा ट्रांसफ़र और फिर ये रिएक्ट होंगे और मिलेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज़ द फोटोसेंसिटाइजेशन। इन दोनों में खुद में कैपेसिटी नहीं है, इसके बगैर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जांपल फोटोसेंसिटाइजेशन के। वैसे ही आपने देखें हाइड्रोजन गैस जो है वो भी खुद एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करती है। अगर उसमें कुछ मर्क्यूरी वेपर्स डाल दें आप हाइड्रोजन गैस में, तो वो जो मर्क्यूरी है वो अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्ब करेगी, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा वो मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स, और फिर वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे हाइड्रोजन गैस को, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन गैस जो है वो डिसोसिएट होगी, मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे और हाइड्रोजन एटम्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल है, और एक एग्जांपल यहाँ पर है ऑक्सैलिक एसिड का। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो है ऑक्सैलिक एसिड का COOH COOH, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है COH/2। ठीक है, तो ये खुद एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो क्या करेगा ये यहाँ पर डाला जाता है यूरेनिल ठीक है सल्फेट, ये यूरेनियल सल्फेट के कैटायंस है। ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे, अब्जॉर्ब करने के बाद में वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे इस ऑक्सैलिक एसिड को। तो यहाँ पर ये जो यूरेनियल आयंस हुए वो हो गए यहाँ के फोटोसेंसिटाइज़र, और फिर उसके बाद में ये रिएक्शन कंटिन्यू होती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है फोटोसेंसिटाइजेशन के। यहाँ पर आपका ये जो फोटोकेमिस्ट्री टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। ओके।